Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you, dear students, and how are your family members? Dear students, as you know, today we will read lesson number 20, A Thirsty Crow. Lesson number 20, A Thirsty Crow. Dear students, here is only some pictures of a thirsty crow. Seeing these pictures, we should create a story about a thirsty crow. Dear students, it is called that long ago there was a crow. He was living in a forest. Once upon a time, he felt the thirsty and he started to search the water here and there. He flew here and there in search of water. But unfortunately, he did not find the water anywhere. He went to the lake in search of water, but he found that the lake is dry. There is not a drop of water in the lake or pond. So he returned from there sadly, and he was flying here and there and looking here and there. At last he found a pitcher on the ground. He came near the pitcher and sat on the mouth of the pitcher. He peeped into the pitcher. He found that there is some water in the bottom of the pitcher. He put his beak into the pitcher, but he did not find the water, because the water was in the pitcher, in the bottom of the pitcher. Suddenly an idea came in his mind. An idea stuck in his mind, and he started to pick up the pebbles or stones, and he started to put in the stone one by one, the pebbles one by one into the pitcher. In last, the crow became able to reach the water, and there the pebbles when the pebbles went into the pitcher, the level of water rose to the mouth of the pitcher. In this way, the crow quenched his thirst, and he became very happy, and he returned to his tree with happiness. Dear students, it is the story about a thirsty crow. Now, here is some hints about the crow
we should make the sentences about the thirsty crow. अजीज तलबा, ये कहानी थी एक प्यासे कौवे की, जो कहानी आपके सामने तफसील के साथ आई कि ये कौवा बहुत प्यासा था, एक जंगल में रहता था, पानी की तलाश में यहाँ वहाँ फिरता रहा। ये कई झीलों में गया, तालाबों तक पहुँचा, लेकिन वहाँ पानी न मिला। बिलाखिर इसे एक घड़ा दिखाई दिया और घड़े में पानी था, लेकिन पानी एकदम घड़े के बिल्कुल निचले हिस्से, बॉटम जिसे कहते हैं, उसमें था। कौवे के जहन में एक ख्याल आया, एक विचार आया और इसने फौरन जमीन से छोटे छोटे कंकर को अपनी चोंच से चुनना शुरू किया और एक एक करके इस घड़े में डालने लगा। बिलाखिर तमाम कंकर के घड़े के बॉटम में जमा हो जाने की वजह से, तमाम कंकर के घड़े में जमा हो जाने की वजह से पानी ऊपर आ गया और कौवे ने अपनी प्यास अच्छी तरीके से बुझाई और हंसी खुशी अपने पेड़ की तरफ, दरख्त और घोंसले की तरफ उड़ गया। अजीज तलबा, ये कहानी है एक प्यासे कौवे की, जिसको अभी इंग्लिश में बताया गया, और इसी से मुताल्लिक इन्होंने ये जो चंद जुमले दिए थे कि इन चित्रों को देखकर सरल भाषा में चारों चित्रों पर कुछ वाक्य बनाओ तथा निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करो। क्रो थर्स्टी फ्लेव हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। तो आप बना सकते हैं, देयर वाज अ क्रो इन अ फॉरेस्ट, ही वाज थर्स्टी, ही फ्लेव हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, he saw a pitcher, water was at the bottom, but the water was, he saw a pitcher but the water was at the bottom, he saw some pebbles and he thought a plan or an idea came in his mind. He threw the pebbles into the pitcher and the water came up. He quenched his thirst. अजीज तलबा, इस तरीके से ये इन जुमलों को, अपने इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके बाद में हमें जो पढ़ना है वह है मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस मतलब मुतफर्रिक एक्सरसाइज, मुतफर्रिक तरह के एक्सरसाइज। जैसे पंडित नेहरू, यहाँ देखिए वाक्य के सामने दी हुई क्रियाओं यानी वर्ब्स में डी या ईडी जोड़कर वाक्य पूरा करो। जैसे पंडित नेहरू हिज कंट्री, अब लव है तो यहाँ आपको डी या ईडी जोड़ना है। तो पंडित नेहरू लव्ड हिज कंट्री, यहाँ पे डी जोड़ देंगे, यानी पंडित नेहरू अपने मुल्क से मोहब्बत करते थे। अब देखिए ही स्टेड, ईडी जोड़ देंगे, इन दिल्ली, यानी वो दिल्ली में रुके थे। शी लुक्ड एट देम, उसने उन्हें देखा। अब यहाँ लुक में ईडी जोड़ देंगे, यहाँ पे लिख देंगे शी लुक्ड एट देम, उसने उन्हें देखा। मोहन एंड सोहन क्या है, यहाँ पे लाइक में डी जोड़ देंगे, लाइक्ड दिस रेडियो, मोहन और सोहन ने इस रेडियो को पसंद किया। इसके बाद में है ई,
आई यू माई पर्स, यहाँ शो है तो ईडी शोव्ड, आई शोव्ड यू माई पर्स, मैंने तुम्हें अपना पर्स दिखाया। द व्हील अप एंड डाउन, यानी द व्हील मूव्ड, मूव में डी जोड़ देंगे, मूव्ड अप एंड डाउन, पहिया ऊपर और नीचे गर्दिश कर रहा था। सोहराब, अब ज्वाइन है तो ईडी जोड़ के ज्वाइंड बना देंगे, सोहराब ज्वाइंड द आर्मी, सोहराब ने आर्मी अटेंड किया, ज्वाइन किया या आर्मी में शिरकत की। दे, अब यहाँ जंप है, जंप्ड हो जाएगा, दे जंप्ड इनटू द वाटर, उन लोगों ने पानी में छलांग लगाया या पानी में छलांग लगाई। रुस्तम, यहाँ किल का किल्ड हो जाएगा, इसमें ईडी जोड़ेंगे, किल्ड हिज सन, रुस्तम ने अपने लड़के को मार दिया। द बॉयज, अब यहाँ प्लेड, ईडी जोड़ेंगे इसमें, द बॉय प्लेड इन द प्लेग्राउंड। अब निम्नलिखित में कुछ शब्द उनकी किस्म से भिन्न हैं, उन्हें कोष्ठक में लिखो। कोष्ठक कहते हैं, ये हिंदी का लफ्ज है, इसके माने होते हैं ब्रैकेट। यहाँ जो आप ब्रैकेट देख रहे हैं इसे कोष्ठक कहते हैं। इन ब्रैकेट में कह रहे हैं निम्नलिखित में कुछ शब्द उनकी किस्म से भिन्न हैं, यानी कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनमें एक आध उसकी किस्म से अलग होंगे, उनको छांट के इस ब्रैकेट में लिखना होगा। देखिए नंबर 1 आई है, नोज है, आम है, रैट। तो यहाँ देखिए आई ये जिस्म का एक हिस्सा है, नोज भी है, आम बाह ये भी है, और रैट यहाँ चूहा कहाँ से आ गया, इसलिए इसे ब्रैकेट में लिखना होगा। इसे टेबल यानी लकड़ी की बनी हुई होती है टेबल, और इसी तरह डेस्क, चेयर और लाइम। अब यहाँ देखिए टेबल, डेस्क, चेयर, ये सारी चीज़ें ये लकड़ी की बनी हुई होती हैं या लोहे वगैरह की, लेकिन यहाँ पे लाइम चूना के माने में है, ये कहाँ से आ गया, इसलिए ये इसकी किस्म से नहीं, इसको ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा। अब देखिए हॉर्स, पैरट, डॉग, काऊ। अब देखिए हॉर्स यानी चौपाया है, डॉग, काऊ ये सब जमीनी सतह के जानवर हैं। इसमें परिंदा ये चूंकि इसकी इस किस्म से नहीं है, इसको यहाँ पे लिख देंगे पैरट को ब्रैकेट में। अब इसके बाद में एप्पल, मैंगो, मंकी, ऑरेंज। यहाँ देखिए एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ये तमाम यानी मैंगो, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज ये फल की किस्मों में से हैं। अब इसमें मंकी देखिए बंदर, इसकी अलग किस्म हो जाती है, इसलिए ये इनमें से नहीं होगा, इसको ब्रैकेट में लिखना होगा। शब्दों को सही कर्म में लिखकर वाक्य बनाओ। देखिए दे गोइंग टू फेयर आर द, देखिए शब्दों को सही कर्म में लिखकर वाक्य बनाओ। यहाँ देखिए इन्होंने इसकी तरतीब उलट पलट दी है, इसको सही करना है। तो दे आर गोइंग टू द फेयर क्या हो जाएगा, दे गोइंग टू फेयर आर द, इसमें तरतीब को उलट दिया है। तो दे यानी फाइल, उसके बाद में आर लाएंगे, तो दे आर गोइंग टू द फेयर। ठीक है, इसके बाद में नंबर 2 ही, अब इसके बाद में इज गोइंग टू द विलेज, ही इज गोइंग टू द विलेज। इसके बाद में यहां देखिए अजीज तलबा, यहां देखिए दे कमिंग फ्रॉम विलेज आर द। अब यहां देखिए दे आर कमिंग फ्रॉम द विलेज। इसके बाद में है शी कमिंग फ्रॉम फेयर इज द, यहाँ तरतीब को उलट दिया है, इसको बनाएंगे शी इज कमिंग फ्रॉम द फेयर। अब यहाँ देखिए योर इज फादर व्हाट, यहाँ देखिए इसको आप बनाएंगे योर
फादर, व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर, क्वेश्चन मार्क इस तरह रहेगा। आप कह रहे हैं कि सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। यहां देखिए मोहन इज, ठीक है। अब यहां ब्रैकेट में दिया है इन्होंने ईटिंग ड्रिंकिंग, तो मोहन इज ईटिंग एन ऑरेंज, क्योंकि सेब है, यहाँ सेब खाया जाता है पिया नहीं जाता, इसलिए ईटिंग हो जाएगा। मोहन इज ईटिंग एन ऑरेंज, मोहन एक क्या है, संतरा खा रहा है। द बॉय इज, अब यहाँ देखिए ब्रैकेट में राइडिंग और सिटिंग, तो द बॉय इज राइडिंग अ बाइसिकल, लड़का एक साइकिल चला रहा है। वी आर, अब यहाँ ब्रैकेट में देखिए वियरिंग अ फ्लाइंग, तो वी आर वियरिंग शर्ट्स, हम शर्ट्स पहने हुए हैं। रवि इज इन रिवर, अब देखिए स्लीपिंग स्विमिंग, तो नदी में स्लीपिंग सोया नहीं है बल्कि तैरा जाता है, तो यहाँ हो जाएगा रवि इज स्विमिंग इन द रिवर। इसके बाद में है किरण इज, अब यहाँ देखिए रोरिंग, रोविंग और कैचिंग, तो किरण इज कैचिंग फिश, किरण मछली पकड़ रही है। अब यहाँ देखिए हरि के स्थान पर आई रखकर निम्नलिखित अनुच्छेद को लिखो। अनुच्छेद यानी नीचे जो पैराग्राफ है या आर्टिकल है, इसको हरि की जगह पर आई लगाकर लिखना है। जैसे हरि वेंट टू द फेयर, तो यहाँ आई लगाएंगे। आई वेंट टू द फेयर, मैं मेला गया। आई बॉट अ बॉल एंड अ बैट, मैंने एक गेंद और बैट बल्ला खरीदा। अब यहाँ पे हिज मदर था, तो यहाँ हो जाएगा माई मदर, चूंकि आई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो माई मदर एंड सिस्टर वेंट विथ मी टू, अब यहाँ ही मी हो जाएगा, यानी मेरी माँ और बहन मेरे साथ गई। दे बॉट स्वीट्स, उन्होंने मिठाइयाँ खरीदी। एंड बैंगल्स, और चूड़ियाँ खरीदी। हरी वॉज वेरी हैप्पी, हरी बहुत खुश था। नहीं, अब यहाँ आई चूंकि इस्तेमाल करना है। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। आई केम बैक एट 7 o'clock, मैं 7 बजे वापस हुआ। अजीज तलबा, ये सबक था जो कि मुकम्मल हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।